السلام علیکم۔ یہ بیان ہے گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ یہ بیان ہے سید امین القادری صاحب کا، بہت ہی پیارا بیان ہے۔ چلیے پہلے بیان کو سنتے ہیں۔ گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور دنیا سے ہی ملتی ہے، بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں مسلمان کو اگر ٹھوکر بھی لگتی ہے ٹھوکر تو اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں بزرگوں کی اقوال، مسلمان کو ٹھوکر بھی اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے۔ اگر مسلمان کا جلتا ہوا چراغ بھی بجھتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے بجھتا ہے۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، اگر ہمارے جسم پہ کبھی سستی چڑھتی ہے، سستی، تو وہ بھی گناہ کی وجہ سے، سستی کا اثر بھی گناہ کی وجہ۔ بزرگان دین فرماتے ہیں انسان کی آنکھ پھڑکتی ہے نا، آنکھ جو پھڑکتی گناہ کی وجہ۔ لوگ کہتے ہیں دائیں پھڑک رہی ہے تو یہ، اور بائیں پھڑک رہی تو وہ، یہ تمہارے قصے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں آنکھوں کا پھڑکنا بھی، جسم کے اندر زلزلے کا پیدا ہونا بھی، حتیٰ کہ بیماریاں بھی، سب گناہ کی وجہ سے، بلکہ جو بھی مصیبت ہے وہ گناہ کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے۔ بلکہ آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بتاؤں، اگر توجہ آپ کی میری طرف ہے تو آپ میری طرف توجہ رکھیں، دائیں بائیں والوں کی طرح آپ توجہ چھوڑ دیں۔ ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلکہ جو ظالم حکمراں مسلط ہوتے ہیں، حدیث پاک ہے، وہ بھی گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں ہی الہ ہوں، میں ہی خدا ہوں۔ بے شک مولا ہم گواہی دیتے لا الہ الا اللہ، تو ہی اللہ ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اور کوئی ہو بھی کیسے سکتا ہے، کہ کوئی تیرا ہمسر ہی نہیں، کوئی تیری مثال ہی نہیں ہے، کوئی تیری طرح ہے ہی نہیں۔ ارے جب کوئی تیرے محبوب کی طرح نہیں ہے تو کوئی تیری طرح کیسے ہو سکتا؟ ہمارے امام کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں۔ تو یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں میں۔ یا اللہ، جس کو تو نے اپنی قدرت کا شاہکار بنا کے پیدا فرمایا، جب اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، جس کو تو نے بنایا ہے، جب بننے والے کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا تو بنانے والے کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا؟ هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کی شان ہی بے مثال ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، اور اللہ فرماتا ہے جب تم میری فرما برداری کرتے ہو تو میں تم سے پیار کرتا ہوں، فرما برداری کرتے ہو تو تم سے پیار کرتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں،
तुम्हें इज्जत देता हूं, तुम्हें वकार देता हूं, और जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो तो फिर मैं तुम्हें दुश्मन बना लेता हूं। किसकी दुश्मनी? अल्लाह फरमा रहा है, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमा रहा है जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो तो मैं तुम्हें दुश्मन बना लेता हूं। दुश्मन बनाने की वजह नाफरमानी। अपने आप में डूब के सोचो, हम एक दिन में अल्लाह की फरमा बरदारी कितनी करते और नाफरमानी कितनी करते। बल्कि दूसरी हदीस में, इस हदीस में नहीं, दूसरी हदीस में, वो भी हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है जो तन्हाई में गुनाह करता है गोया वो मुझे जंग का चैलेंज करता है। थोड़ा इस पे भी गौर करना। तन्हाई में गुनाह करने वाला गोया अल्लाह को जंग का चैलेंज करता है। मेरे भाई जरा सोच तो तू सही, मोहल्ले के गुंडों से निपटने की औकात नहीं है, मोहल्ले के कारपोरेटर से मुंह चलाने की हैसियत नहीं है, और जंग का चैलेंज किसको कर रहा है? किसको? उस कादिर और कय्यूम को जो अपनी शान यूं बयान करता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अगर वो फिरौन की पकड़ कर ले, दौलत पे घमंड करके अकेले में गुनाह करने वालों, जवानी पे नाश करके तन्हाइयों में गुनाह करने वालों, हुस्न जमाल पर अकड़ अकड़ कर इतरा इतरा कर खुदा को भूल कर गुनाह करने वालों, तन्हाइयों में गुनाह करके खुदा को जंग का चैलेंज करने वालों, मेरे अल्लाह की शान तो देखो। अल्लाह अकबर। मैं ये नहीं कह रहा हूं माज़ अल्लाह कि कोई जानबूझकर खुदा को जंग का चैलेंज करता है, वल्लाह कोई कलमा पढ़ने वाला सोच भी नहीं सकता यार हम वलियों से नहीं लड़ते तो हम लोग अल्लाह से जंग का चैलेंज अल्लाह को कैसे कर सकते हैं। लेकिन हदीस तो है ना, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, हदीस कुदसी है, हदीस पाक का मफहूम है कि जो तन्हाई में गुनाह करता है गोया वो अल्लाह को जंग का चैलेंज करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह उसके साथ ऐलान जंग फरमा रहा है, अल्लाह उसके साथ ऐलान जंग कर रहा है। किसके साथ? जो अकेले में तन्हाई में गुनाह करता हो। मुझे बताओ अल्लाह की पकड़ क्या है? अगर वो फिरौन जैसे की पकड़ कर ले, इतना बड़ा बादशाह कहलाने वाला फिरौन, जब मेरा अल्लाह उसकी पकड़ करता है, आज सदियां बीत गई है फिरौन को, आज तक उसको कब्र नसीब नहीं हुई, बगैर कब्र के पड़ा हुआ है। आज तक अल्लाह अकबर उसको कब्र नसीब नहीं है, बगैर कब्र के पड़ा हुआ है। और फिरौन की लाश हमें पुकार पुकार कर दावत इबरत दे रही है। जब कोई अल्लाह के गजब को चैलेंज करता है तो खुदा उसको इबरत बना देता है। कहां बादशाह था और अभी कब्र भी नसीब नहीं। लावारिस मैयतों को भी कब्र नसीब होती है, लेकिन जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को के साथ ऐलाने जंग करे, फिरौन इबरत बनकर एक म्यूजियम में पड़ा हुआ है, लोग उसको तमाशा देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए दौलत पे नाज न करो, जवानी पे नाज न करो, कुव्वत पे नाज न करो। अल्लाह के बंदो, गुनाह करने वालों के लिए अल्लाह फरमाता है जो गुनाह करते हैं मैं उनको अपना दुश्मन बना लेता हूं और फिर उन पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत कर देता हूं, उन पर जालिम हाकिम मुसल्लत कर देता हूं, उन पर जालिम लीडर मुसल्लत कर देता हूं। अल्लाह फरमाता है और उनके दिल में तुम्हारी नफरत पैदा कर देता हूं। नफरत जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, तुम पे जुल्म करते हैं, और जब तुम गिड़गिड़ाते हो, दुआ करते हो, तो फिर उस वक्त तो तुम्हारी दुआएं भी कबूल नहीं होती। फिर अल्लाह फरमाता है फिर तुम उनके पास गिड़गिड़ाते हो, तुम उनके पास जाके हाथ जोड़ते हो, वहां गिड़गिड़ाते हो। अल्लाह फरमाता है वहां गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलेगा। अगर जालिम हुक्मरानों को बदलना है तो मेरी बारगाह में रुजू करो, तौबा करो, मुआफी मांगो। हालात बदलने वाले हम हैं। बीमारियां गुनाहों की वजह से, जिल्लत गुनाहों की वजह से, जालिम हुक्मरां गुनाहों की वजह से। और अज़्ज़वाजिर में इब्ने हजर एक हदीस नकल करते हैं, उसको भी सुन ले। मालम क्यों कमाते हैं? घर क्यों बनाते हैं? रात दिन दौड़ भाग क्यों करते हैं? इसलिए हमारे बच्चों का भला हो जाए। मैं समझता हूं कि हमारी जितनी मेहनतें हैं सिर्फ अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, लेकिन गुनाह करने वालों हदीस सुनो। मैं समझता हूं कि हम में कोई ऐसा नहीं है
جو गुनहगार ना हो। बिल्कुल सही बात लेकिन है। गुनहगारों की अल्लाह दो अकबर किस्में है। हैं, एक वो जिनसे गुनाह हो जाते हैं, एक वो जिनसे गुनाह हो जाते हैं, और एक वो जो गुनाह करते हैं। ये जो मुजम्मत हो रही है ना, गुनाह हो जाने वालों की नहीं हो रही है, गुनाह करने वालों की। क्योंकि गुनाह, कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जिससे गुनाह ना हो, लेकिन जिनसे गुनाह होते हैं वो फौरन नादिम होते, शर्मिंदा होते, तौबा करते हैं, अल्लाह को मना लेते हैं कि एक बंदा है वो गुनाह करना नहीं चाहता, हो गया। झूठ बोलना नहीं चाहता था, निकल गया। चोरी करना नहीं चाहता था, हो गई। बदकारी करना नहीं चाहता था, हो गई। ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते और हो जाता है। वो तौबा भी करते, अल्लाह को मनाते भी, इस्तिगफार भी करते, है ना। बल्कि एक बात बताऊं, जो करना नहीं चाहते और उनसे हो जाए तो उनके लिए क्या है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अम्मा जान आयशा सिद्दीका से फरमाते हैं, आयशा कुछ गुनहगार ऐसे हैं जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। आपने सही सुना मैं जो कह रहा हूं, क्या मफहूम के तौर पे पढ़ रहा हूं। कुछ गुनहगार ऐसे हैं, कुछ गुनहगार ऐसे हैं, कुछ गुनहगार ऐसे हैं जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। कौन है वो गुनहगार। आका फरमाते हैं, जिनसे गुनाह हो जाते हैं, करते नहीं है, हो जाते हैं, और वो तन्हाई में, अकेले में अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के खौफ से रोते हैं। ऐसे रोने वालों को अल्लाह बेहिसाब जन्नत अता फरमाए। तवज्जो फरमाए। आज हमसे गुनाह हो नहीं रहे, हम गुनाह कर रहे हैं, और वो भी इतने बड़े बड़े गुनाह करके हम अपने आप को गुनहगार समझ ही नहीं रहे। सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तानुल आरिफीन सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आपको अक्सर खून का पेशाब होता है। जब पेशाब करते थे तो खून निकलता था, पेशाब के रास्ते से अक्सर खून बहता था। जब मुरीदों को इसकी इत्तला हुई कि मुर्शिद के पेशाब में खून निकलता, कौन, बायजीद, सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी, जिनके बारे में सैयदुत ताइफा ताउसुल उलमा सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि बायजीद बुस्तामी का मकाम वलियों की कायनात में ऐसा ही है जैसे फरिश्तों में अल्लाह ने जिब्रील को मकाम अता किया है, बायजीद को अल्लाह ने वलियों में मकाम अता किया। सरकार गौसे आजम से पहले आप पैदा हुए, ये बायजीद बुस्तामी, सैयदना बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह तबारक व तआला। कौन बायजीद। इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिनको मकाम हुजूरी नसीब फरमाया। एक होता है हाजिरी का मकाम और एक होता है हुजूरी का मकाम। हाजिरी और हुजूरी में फर्क यह है कि हाजिरी वाले आते जाते रहते हैं और हुजूरी वाले हमेशा यार के जलवों में गुम रहते हैं। ये मकाम था बायजीद बुस्तामी। तो सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी को खून का पेशाब होता था अक्सर। जब मुरीदीन को पता चला तो किसी ने अर्ज की, हुजूर किसी अच्छे हकीम से इलाज करवा लेते हैं, किसी अच्छे तबीब को बता लेते हैं, ताकि खून का ये जो पेशाब का मर्ज है अच्छा नहीं है, जानलेवा है, आपकी जान जा सकती इसमें। तो सुल्तानुल आरिफीन हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मेरा इस बीमारी का इलाज जो खून का पेशाब होता है दुनिया के किसी हकीम के पास नहीं है, किसी तबीब के पास नहीं है। तो मुरीदीन ने जो बड़े चाहने वाले थे कहने लगे, हुजूर आखिर ये कौन सा ऐसा मर्ज है कि जो किसी हकीम और तबीब से अच्छा नहीं हो सकता। तो फरमाते हैं, मेरे बेटो दरअसल ये कोई बीमारी नहीं है, जो खून का पेशाब होता है ना, ये कोई बीमारी नहीं है। असल बात ये है कि बचपने में मुझसे एक गुनाह सरजद हो गया था, बचपने में मुझसे एक गुनाह हो गया था, गुनाह सरजद हो गया था। वो अपने बारे में कह रहे हैं, वरना हम उनके बारे में गुनाह के अल्फाज न बोलते हैं न बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा मजहब और मसलक मुकम्मल अदब है। अपने बारे में आजिजी करते हुए इंसान जो कह ले, हम थोड़ी कहेंगे बड़े से बड़ा मुर्शिद कहे मैं गुनहगार हूं, हम थोड़ी कहेंगे बड़े से बड़ा आलिम कहे कि मैं जाहिल हूं, हम थोड़ी कहेंगे बड़े से बड़ा आला कहे मैं अदना हूं, हम थोड़ी कहेंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी से जब कहा
गया। आखिर ये जो खून का पेशाब होता है और आप कहते हैं कि किसी हकीम और तबीब के पास इसका इलाज नहीं है, मुर्शिद वजह क्या है, आखिर ये कौन सी बीमारी है? तो बायजीद बुस्तामी फरमाते मेरे बेटो, मेरे रूहानी बेटो, दरअसल बात ये है कि बचपने में मुझसे गुनाह सरजद हो गया था। अब जब मुझे याद आता है कि क़यामत में अल्लाह जब मेरे अमाल के बारे में मुझसे पूछेगा और मेरे गुनाह के बारे में मुझसे पूछेगा तो मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा? खुदा की बारगाह में खड़े होने के तसव्वुर से जब मुझे वो वक्त याद आता है, जब मुझे वो दोस्तों इसी तरह से बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम।